اس کے لیے جو حوالہ آج پڑھا گیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ جو بات چیت ہم دیکھ رہے ہیں ان دنوں میں وہ یہ ہے کہ جو پہلوٹے ہیں ان کو خدا کے کلام میں کس طرح سے ٹریٹ کیا گیا ہے اور کیا چیزیں ہیں جن کو سمجھنا اور جاننا جو ہے وہ خدا کے لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم وہ پرنسپل جو خدا نے اپنے پاک کلام میں ہمیں دیے ہیں ان کو نہ سمجھ سکیں تو یاد رکھیں کہ اس کی وجہ سے ہماری چھوٹ نہیں ہو سکتی۔ خدا اس لیے ہمیں معاف نہیں کر دے گا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ کلام میں کیا لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کے سبب سے ہلاک ہوئے۔ سو اگر معرفت نہیں ہے، اس کی سمجھ نہیں ہے تو ہم خدا کو یہ نہیں جا کے کہہ سکتے کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ تو اگر ہم کہیں گے تو خدا کیا کہے گا کہ پتہ کرنا تھا، ہے نا؟ آپ کو اور کتنی چیزوں کا پتہ تھا، اور اگر اس کا پتہ نہیں تھا تو پھر اس کا پتہ کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں محنت کرنی ہے، ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں جاننا ہے تاکہ خدا اور اس کے کلام کی باتیں جو ہیں ان کو میں اور آپ سمجھ سکیں۔ تو پچھلے وقتوں میں نے آپ کو ان باتوں کے بارے میں بتایا تھا کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ پہلوٹے جو ہیں ان کے لیے ہیں۔ پچھلا 5 باتیں میں نے بتائی تھیں کہ پہلوٹا کیا کرتا ہے، کیوں وہ خاص ہے۔ کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو ہے اپنے گھر میں کراؤن پرنس یا کراؤن پرنسس کے طور پہ ہے۔ جو بادشاہ اس دنیا میں وہ بھی انسان ہی ہے، راج کرتے ہیں، تو ان کا جو پہلوٹا بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے وہ سنبھالتی ہے، اور عام گھروں میں جو بڑا بچہ بچی ہوتی ہے اس کی ایک اپنا روب دبدبہ، ایک اپنی بات ہوتی ہے، ہم سب اس کو جانتے اور سمجھتے ہیں۔ پھر جو پہلوٹا بچہ ہوتا ہے جب تک وہ نہ آئے باقی اولاد رکی رہتی ہے، ایک طرح سے وہ آئے گا تو باقی اولاد جو ہے وہ آئے گی۔ پھر ہم نے دیکھا تھا تیسری بات کہ جو پہلوٹا بچہ ہے وہ ماں کے رحم کو جو ہے وہ کھولتا ہے۔ پھر چوتھی بات ہم نے دیکھی تھی کہ جو پہلوٹا بچہ ہے وہ دلہن کو ماں ہونے کا درجہ دیتا ہے، اور پھر جو پہلوٹا بچہ ہے وہ دلہے کو باپ ہونے کا درجہ اس سے ملتا ہے۔ اور آج چھٹی بات بھی اس کے ضمن میں ہم نے یاد رکھنی ہے کہ جو پہلوٹا بچہ ہے وہ لائن میں پہلے نمبر پہ کھڑا ہوتا ہے ماں اور باپ کے ورثے کو لینے کے لیے۔ جو ماں اور باپ کا ورثہ ہے، وراثت ہے، اس کو لینے کے لیے جو پہلوٹا بچہ ہے، پہلا بچہ ہے، he or she is the first in line۔ وہ جو لائن ہے لینے کی اس میں پہلا ہے، اور اگر اس کے بعد کوئی دوسرا بچہ بچی آ بھی جائے تو ان کو حصہ ملے بھی، تو بھی کلام میں کیا لکھا ہے، جو پہلوٹا ہے اس کو پھر بھی زیادہ حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ سو اس لیے پہلوٹا جو ہے وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ وہ ماں باپ کا جو حصہ ہے اس کو لینے کے لیے لائن میں پہلا ہے۔ اور اگر اس کے بعد کوئی بچہ بچی پیدا نہ ہو تو وہ اکیلا وارث ہوتا ہے ان ساری چیزوں کا جو باپ کی اور ماں کی جائیداد ہے، وہ سب کچھ کو لیتا ہے۔ سو اس لیے پہلوٹے بچے جو ہیں وہ بڑے خاص ہیں، اور خدا نے کہا کہ جو پہلوٹے ہیں وہ میرے بچے ہیں، وہ میرے خادم اور خادمائیں ہیں۔ اس لیے میں نے بتایا تھا کہ اکثر ہم یہ کہتے ہیں جی یہ میرا پہلوٹا بیٹا یا پہلوٹی بیٹی ہے۔ کوشش کریں کہ یہ کہیں کہ یہ خدا کا پہلوٹا ہے جو اس نے مجھے دیا ہے، تو یہ بہتر بات ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ ہماری پراپرٹی ہی نہیں ہے، اس پہ ہمارا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ حق کس کا ہے؟ خدا کا اس پہ حق ہے، اس لیے اسی کا حق رہنے دیں تو اچھی بات ہے۔ سو پہلوٹا جو ہے وہ فرسٹ ان لائن ہے، وہ سب کچھ کو لینے کے لیے وہ ماں باپ کی جائیداد بھی لے گا،
वो माँ बाप की आदत लेगा, वो माँ बाप की बरकतें लेगी। वो बच्चा बच्ची जो भी है पहलौठा, वो माँ बाप की लानतें लेगी। जो भी चीजें चली आ रही जनरेशनल कर्ज के तौर पे, उसका ज्यादा इंपैक्ट जो है वो बड़े बच्चे पे होता है। इसके बाद मेरे दिल में है कि हम जो है वो जनरेशनल कर्सेस जो है, नस्ली लानते जो है, उनको स्टडी करें कुछ हफ्तों के लिए बाइबल मुकद्दस में कि ये क्या है। बाइबल उनको जब बताती है तो क्या मतलब है इसका, कैसे इनको समझा जा सकता है, कैसे इनसे आजाद हुआ जा सकता है। तो ये बच्चा जो पहला है वो बड़ा खास है, क्योंकि वो माँ बाप के सारे बोझ को, चाहे वो रूहानी हो, चाहे वो जिस्मानी हो, चाहे वो माली हो, किसी भी सूरत में हो, वो बच्चे जो हैं वो उसको ज्यादा शेयर करते हैं। इसलिए वो बच्चे जो हैं वो खुदा की निगाह में भी अहम है, और जो चीज भी खुदा की निगाह में अहम है, इब्लीस जो है खास उस पे नजर और निगाह रखता है, ताकि वो किसी तरह से उसे डिस्टर्ब करे और किसी तरह से उसके लिए जो है वो हिंडर पैदा हो सके। गिनती की किताब अगर 3रा बाब उसका पढ़े तो 11वीं आयत से 13वीं आयत में लिखा है, खुदा ने कहा कि जब मैंने मिस्र के अंदर पहलौठों को मारा, मिस्र के पहलौठों को, तो क्या लिखा है कलाम में, खुदा ने क्या कहा, उसी वक्त मैंने इस्राएल के पहलौठों को अपने लिए चुन लिया, उनको मखसूस कर लिया, और इस बात का इरादा कर लिया कि जो इस्राएल के पहलौठे हैं वो आज से मेरे हुए। तो ये बात जो है खुदा ने बनी इस्राएल को बताई, और बनी इस्राएल इससे बखूबी वाकिफ थे कि जब ईद फसह मनाई जा रही थी तो कलाम में लिखा है कि मौत का फरिश्ता खुदा की तरफ से आया, और वो मौत का फरिश्ता किसको ढूंढ रहा था, पहलौठों को ढूंढ रहा था। वो मौत का फरिश्ता जो है पहलौठों की तलाश कर रहा था कि पहलौठे कहां पे हैं, पहलौठा कौन सा है, और वो उसको मार रहा था। चाहे वो पहलौठा मिस्र का हो, चाहे वो पहलौठा इस्राएल के घराने का हो, पहलौठों को मारा जा रहा था। तो जब मौत का फरिश्ता वहां पे मौजूद है, मौत का फरिश्ता मिस्र में फिर रहा है, तो पहलौठे जो है वो खतरे के अंदर है, पहलौठों की जान महफूज नहीं है, पहलौठे जो है उनकी जान को खतरा है, वो जान से जा सकते हैं। कब? जब मौत का फरिश्ता जो है ईद फसह मनाई जा रही है और मौत का फरिश्ता जो है वहां पे फिर रहा है, तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ पहलौठों की जान को खतरा है, बाकी बच्चे महफूज हैं। चाहे वो मिस्र के बच्चे ही क्यों ना, चाहे वो इस्राएल के बच्चे ही क्यों ना, खतरा किनको है, पहलौठों। बाकी बच्चे दे आर सेव्ड, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई और बच्चा मारा नहीं जाएगा, सिर्फ एक जो पहलौठा है उसकी जान खतरे के अंदर है। और ईद फसह जो है वो मनाई जा रही है, और खुदा का ये फरिश्ता किन पहलौठों को मार रहा है, उन पहलौठों को मारा जा रहा है जो पहलौठे जो है जो खून के नीचे नहीं है। अगर कोई पहलौठा खून के नीचे नहीं है, यानी वो मसीह के खून से धुला नहीं है, तो वो पहलौठा जो है वो मारा जाएगा, वो पहलौठा जिंदगी नहीं पा सकता, वो पहलौठा आज की रात
सरवाइव नहीं कर सकता। चाहे वो पहलौठा कितना ही सेहतमंद क्यों ना हो, कितना ही अमीर क्यों ना हो, कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना ही जो है वो शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना ही बली क्यों ना हो, कितना ही असर और रसूख रखने वाला क्यों, आज सिर्फ और सिर्फ खून लगा है तो बचेगा, खून नहीं लगा तो वो मारा जाएगा। सो पहलौठे जो है उनकी जान को खतरा है, और वो पहलौठे जिन पे खून नहीं लगा, आज भी वो पहलौठे जिन पे मसीह का खून नहीं लगा, यानी उन्होंने मसीह को कबूल नहीं किया, उन्होंने मसीह को अपनी जिंदगी नहीं दी, वो पहलौठे जो है बार बार वो मौत को टेस्ट करते हैं। बार बार उनकी जिंदगी के अंदर जो है आप देखेंगे कि वो बार बार अपनी सिचुएशन में, अपने हालात में, अपनी चीजों में डेथ को टेस्ट करेंगे। बार बार चीजें उन्हें लगता है जैसे खत्म हो गई हैं। सो पहलौठों ने क्या करना है, हमने भी करना है, सिर्फ पहलौठों की बात नहीं, लेकिन आज सब्जेक्ट चूंकि ये है खास कि उन्होंने मसीह को क्या करना है, कबूल करना है, पहली बात। और दूसरी बात, उन्होंने मसीह को अपना आप देना है। आज प्रॉब्लम क्या है कि हम मसीह को कबूल तो कर लेते हैं, तौबा तो कर लेते हैं, अपनी जिंदगी जो है वो हम इकरार तो कर लेते हैं जुबान से, लेकिन हम कभी भी अपना आप खुदा के हाथों में नहीं देते। हम मसीह को रिसीव कर लेते हैं, लेकिन अपना आप मसीह के हवाले नहीं करते। हम कहते हैं खुदावंद हमने तुझे कबूल कर लिया है, अब हमें अपने काम खुद करने दे। अजीजों, हमने ये दो तरफा बात, हमने मसीह को कबूल भी करना है और फिर अपना मसीह के हवाले भी करना है। आज ज्यादातर ईमानदार, आज ज्यादातर लोग जो खुदा के लोग कहलाते हैं, उन्होंने सिर्फ मसीह को कबूल किया है। ज्यादातर लोग जो हैं उन्होंने मसीह को अपना आप कभी दिया ही नहीं। मसीह उनकी जिंदगियों का मालिक ही नहीं। उनकी जिंदगी में बहुत से दरवाजे ऐसे हैं, उनकी जिंदगी में बहुत से रूम्स ऐसे हैं, उनकी जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जहां मसीह को जाने की इजाजत ही नहीं, और मसीह के साथ उनका रिश्ता और राबता वहां पे मुमकिन ही नहीं। सो हमने सिर्फ तौबा नहीं करनी, बल्कि हमने क्या करना है, हमने अपना आप मसीह के, खुदा के हवाले करना है। सो मिस्र में जो फरिश्ता है वो पहलौठों को मार रहा है, चाहे वो मिस्र के पहलौठे हैं, चाहे वो इस्राएल के पहलौठे हैं। खुदा का फरिश्ता पहलौठों को जान से मार रहा है। अक्सर हम ये सोचते हैं, मैंने इस सोच को बार सुना ईमानदारों के मुंह से, कि जो फरिश्ता है वो इस्राएल के पहलौठों को नहीं मार रहा, इस्राएल के पहलौठों को नहीं मार रहा और नहीं मारा उसने। लेकिन याद रखें कि फरिश्ता जो है वो इस्राएल के पहलौठों को नहीं बचा रहा था, वो उनको हलाक करने के लिए, ये नहीं कि वो उनको हलाक नहीं कर रहा था, बल्कि इस्राएल के पहलौठों को बर्रे का लहू बचा रहा। फरिश्ता जो है वो मारने के लिए आया हुआ था। अगर बर्रे का लहू इस्राएल के घराने पे नहीं तो उसका पहलौठा बच नहीं सकता। सो फरिश्ता मौजूद है तो वो मारेगा, चाहे वो मिस्री पहलौठा है, चाहे वो इस्राएली पहलौठा है। पहलौठों के लिए जरूरी है, अगर कोई मसीह के लोग हैं वो भी, और अगर कोई मसीह के लोग नहीं भी हैं तो भी पहलौठे अगर इस प्रिंसिपल से वाकिफ नहीं तो वो जिंदगी में बहुत सी मुसीबतों में से गुजरते हैं। सो जो फरिश्ता है
वो नहीं बचा रहा पैलौठों को, बर्रे का लहू बचा रहा, ताकि मुझे और आपको याद रहे, ताकि मैं और आप बताएं लोगों को कि फरिश्ते ने मुझे नहीं छोड़ा जिंदा, बल्कि मसीह के लहू ने मुझे जिंदा रखा, मसीह के लहू ने मुझे बचाया है। बर्रे का लहू जो उस वक्त लगाया गया वो सलीब का निशान और मसीह के लहू का मुसील था। इसलिए खुदा के लोग जो हैं उनको ये समझना और जान, ये आसान बातें हैं, लेकिन सिर्फ छोटी छोटी चीजों से जब आप इसको समझने की कोशिश करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से आसानी से समझ आ जाती है। मिस्र जो है वो गुलामी का घर समझा जाता है, बियाबान जो है वो मुसीबतों की जगह समझी जाती है। तो इसलिए बनी इस्राएल कहां जा रहे थे? बियाबान से निकल के कहां पे जा रहे थे? वादा की हुई सरजमीन मुल्के किनान के अंदर जा रहे थे। कोई भी शख्स आज ईमानदार से पूछे, वो कहेगा कि मैं मिस्र में नहीं रहना चाहता, वो कहेगा मैं बियाबान में नहीं रहना चाहता, वो कहेगा मैं बाबल में रूहानी तौर पे नहीं रहना चाहता। पूछे कहां रहना चाहते हैं? वो कहेंगे हम वादे की जमीन में जाना चाहते हैं, हम मुल्के किनान में जाना चाहते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप और मैं याद रखें कि मुल्के मिस्र के अंदर, बियाबान के अंदर, बाबल के अंदर, ये तीनों मुल्कों में, जगहों में हम जाना तो नहीं चाहते, लेकिन बाइबल मुकद्दस के जितने बड़े मोजज़े और जितने बड़े निशान हैं वो इन्हीं तीनों जगहों पे आपको नजर आते हैं। तो इसलिए मुझे और आपको ये याद रखना है, अगर हमारी जिंदगी में मोजज़ात हो रहे हैं, अगर हमारी जिंदगी में काम हो रहे हैं, अगर हमारे वसीले से काम हो रहे हैं, अगर हमारे अंदर मोजज़ात हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मुल्के किनान के अंदर पहुंच गए। मोजज़ात मिस्र के अंदर भी हुए, मोजज़ात बियाबान में भी हुए, मोजज़ात जो है वो बाबल के अंदर भी हुए, लेकिन लोग अभी तक मुल्के किनान में नहीं थे। हम खुद से चीजों को एज्यूम कर लेते हैं, हम खुद से चीजों को जो है वो अपने तौर पे स्कोपा कर लेते हैं, बिल्ड कर लेते हैं। हम समझते हैं मेरी जिंदगी में ये काम हो रहा है, ये काम हुआ है, ये मोजज़ा हुआ है, तो मैं मुल्के किनान के नो 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 मोजज़ात का होना इस बात का निशान नहीं है। हमें कलाम के मुताबिक चलना और कलाम के मुताबिक जो है जिंदगी में आगे बढ़ना है। अगर आपके घर में कोई पैलौठा है, बेटा है और बेटी है, और वो पीछे रह गए हैं जिस्मानी तौर पे, माली तौर पे, और आप छोटे बहन भाई हैं, तो उन्हें हेल्प आउट कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो यकीन करें कि आपको और आपकी नस्ल को बरकत मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो पैलौठे की अनॉइंटिंग है, पैलौठे की बुलाहट है, उसमें से आपकी जिंदगी में अनॉइंटिंग जो है खुदा उसको ट्रांसफर करना शुरू कर देगा। हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम रूहानी चीजों को ना देख सकते हैं ना समझ सकते हैं, इसलिए हम उसे जो है वो रिसीव नहीं करना चाहते, उसके लिए कोशिश भी नहीं करना चाहते। लेकिन जिनकी निगाह आसमान के ऊपर लगी होती है वो इन चीजों को समझते हैं और वो इन चीजों को रिसीव करते हैं। क्यों आपने पैलौठे की मदद करनी अगर पीछे रह गया? क्योंकि अगर वो हुज्जती निकलता पैलौठा, अगर वो पैलौठा जो है वो बुरा निकलता, तो बहुत चांस था कि माँ बाप जो है वो छोटे बच्चों पे ध्यान ही ना दे पाते। माँ बाप की रिसोर्सेज, एनर्जी, पैसा वो बड़े बच्चे पे ही सरफ हो जाता, क्योंकि किसी भी बच्चे को माँ बाप जो है वो अकेला नहीं छोड़ते, वो कितना भी खराब निकल आए। तो इसलिए मुझे और आपको पैलौठों के ताल्लुक से समझना और जानना
और इसको जरूरी है कि इन चीजों के बारे में हमारा ध्यान कायम रहे। खुदा जो है वो अहद का खुदा है। खुदा हमेशा शुरू से अहद बांधता आया है। और जो पहलौठे हैं, जब ये एक बुलाहट है, पहलौठा होना क्या है? ये एक बुलाहट है। खुदा ने क्या कहा? पहलौठा जब पैदा हुआ है तो वो कौन है? वो मेरा है। पहलौठे को नहीं पता अभी, पहलौठा नहीं जानता, पहलौठी नहीं जानती, लेकिन पैदा होते ही वो बुला लिए गए हैं खुदा के हुजूर। पैदा होते ही वो खुदा के लिए मखसूस है, वो चाहे या ना चाहे। इसलिए खुदा उन्हें डिमांड करता है, खुदा उनके लिए जो है वो पीछा करता है। क्यों? क्योंकि वो चीज उसकी है। और इब्लीस चूंकि इसको जानता है, इस प्रिंसिपल को, तो इसलिए वो पहलौठों के लिए जो है उनकी जिंदगी में रूहानी और हर तरह की खराबी को पैदा करने की कोशिश करेगा। इसलिए जब आपने कोई भी, याद रखे, अहद बांधना है तो उस अहद के लिए खुदावंद का कलाम हमें क्या कहता है कि उस अहद के लिए खून का होना जरूरी है। जरूरी है कि खून हो। और जब भी आपने कोई भी अहद बांधना है आज, तो आज हम कैसा अहद बांधते हैं? हम खून तो नहीं लेके जाते। कलाम में क्या लिखा है रोमियो के खत के 12 बाब की पहली आयत में कि हमने कैसे इबादत में जाना है? जिंदा कुर्बानी के तौर पे। कैसे? कि हमने लहू लेके जाना है किस सूरत में? जिंदा कुर्बानी की सूरत में। सो जब आप खुदा के हजूर में आते हैं तो आप कुर्बानी के तौर पे आए हैं। और ये अहद इसलिए है क्योंकि जब आप आए हैं तो आपका खून भी आपके साथ आया है। यू आर फिल्ड विद द ब्लड। ब्लड के लिए भी एक हम रखेंगे महीना जिसमें हम सिर्फ ब्लड को स्टडी करेंगे कि ये क्या है। इसका बहुत जिक्र किया गया है। इसको जानना बहुत जरूरी है मसीहों के लिए। हम जो बड़ी आम सी बातें करके तो चले जाते हैं, लेकिन जो कलाम की उम्दा, गहरी, उम्मीद बातें जिनसे आपका दिल जोश से भर जाए कि कलाम इतना वसी है, कलाम इतना गहरा और खूबसूरत है, उनसे हम महरूम रह गए हैं। जब आप आते हैं तो आपका खून आपके अंदर है। आप अपने आप को कुर्बानी के तौर पे जब रख देते हैं तो ये जिंदा कुर्बानी है। आप जिंदा भी हैं और आप अहद का हिस्सा भी हैं। इसलिए खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है? बस भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिला के तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और अगर ये ना हो तो फिर कैसी इबादत है? नामाकूल इबादत है। हमने नामाकूल इबादत से निकल के माकूल इबादत में। खुदा जो है वो अहद का खुदा है, वो अहद बांधता है। इसीलिए खुदा जो हमेशा ब्लड को दरमियान में रखता है। ब्लड के बगैर अहद नहीं बांधा जा सकता, खून के बगैर अहद नहीं बांधा जा सकता। जब खुदा ने मिस्र से भी निकालना है, खून दरमियान में रखा गया है ताकि पता रहे कि जब भी मिस्र से निकलना है तो बर्रे का खून जो है वही हमें बाहर लेके जा सकता है। मिस्र से बाहर कौन गए? जो बर्रे के खून के नीचे थे। जो मिस्री थे वो मिस्र में ही रह गए। जो मिस्री थे वो मिस्र में से नहीं निकले, लेकिन जो बर्रे के खून के नीचे थे, मिस्रियों ने भी उनके कहा कि जल्दी करो, निकलो यहां से, अब तुम यहां ठहर नहीं सकते। जो बर्रे के खून के नीचे हैं वो मिस्र में नहीं ठहर सकते, वो मिस्र से बाहर निकल जाएंगे।
वो मिस्र से जो है वो कूच कर जाएंगे। इसलिए मुझे और आपको याद रखना है, अहद जो है ये बहुत जरूरी है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात शायद कभी आपने सोची हो या ना सोची हो, कि जो लड़के हैं उनका खतना किया जाता है। क्यों उनका खतना? 8 दिन का जब लड़का होता तो उसका क्या कर दिया जाता? खतना कर दिया जाता। और खुदा ने कहा कि ये मेरा अहद है तुम्हारे बदन में। और खुदा ने कहा कि अगर कोई ऐसा न करे तो उसको मैं अपनी कौम में से काट डालूंगा। और कलाम में लिखा है, खुदा ने मूसा को बुलाया, झाड़ी में नजर आया, जो राजी हो गया जाने के लिए। और जब मूसा को खुदा ने पूरे तौर पे तैयार कर लिया, वो राजी हो गया जाने के लिए, तो उसके फौरन बाद जो पहला काम खुदा ने मूसा के साथ किया वो क्या था? द जजमेंट ऑफ मोसेस। कलाम में लिखा है, खुदा ने उसे मार डालना चाहा और उसकी बीवी सफूरा ने उसके लड़कों का खतना किया। खतना नहीं तो आप अहद के नीचे नहीं, आप खुदा के गजब के नीचे आ सकते हैं, आप खुदा के गजब का शिकार हो सकते हैं। और लड़के का खतना किया जाता ताकि उसका ब्लड निकाला जाए और उस ब्लड की वजह से वो खुदा के कवनेंट में शरीक हो जाए। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्यों लड़की के लिए कोई ऐसा इंतजाम क्यों नहीं किया गया? अगर आप तीमुथियुस का पहला खत पढ़ें और उसका 2 बाब है और उसकी 15 आयत है। तीमुथियुस का खत, उसका पहला खत था तीमुथियुस का 2 बाब और उसकी 15 आयत में लिखा है, जो औरत है वो कैसे निजात पाएगी? वो औलाद होने से निजात पाएगी। कैसे पाएगी निजात? औलाद होने से। क्यों? क्योंकि जब औलाद होती है तो उसका खून बहता है और उस ब्लड की वजह से वो खुदा के कवनेंट में शरीक हो जाती है। और औरत ही है जिसके ब्लड बहने की वजह से या औलाद होने की वजह से मसीह ने, बर्रे ने, खुदा के अहद ने जमीन के ऊपर आना था। इसलिए लिखा वो कैसे निजात पाएगी? लेकिन लड़के का चूंकि खून नहीं बहता किसी भी और तरीके से जब तक चोट ना लगे, तो इससे उसको चोट पहुंचाई जाती ताकि उसका ब्लड शेड किया जा सके और वो खुदा के कवनेंट में शामिल हो जाए। और अगर किसी की औलाद नहीं भी हुई तो याद रखें कि जो बेटियां हैं वो ऑलरेडी ब्लड में जिंदगी बसर करती हैं, हर महीने उनका खून बहता है। इसलिए जो है सिर्फ लड़के का इंतजाम किया गया कि लड़के जो हैं उनका खून निकलना चाहिए, ताकि ब्लड निकलने की वजह से खुदा ने कहा कि ये इनके बदन में मेरा कवनेंट है, ये मेरा अहद है जो इनके बदन में मौजूद है। इसलिए जो बेटियां हैं, आपकी बेटी है तो आपने उसके लिए दुआ करनी है। किस चीज के लिए? आपने उसकी वूम के लिए दुआ करनी, आपने उसके राम के लिए दुआ, उसकी बच्चादानी जहां पे नस्ल पैदा होती है उसके लिए दुआ करें कि उससे जोरावर नस्ल पैदा हो, रूहानी जोरावर नस्ल पैदा हो, मुआशरती तौर पे वो जोरावर नस्ल पैदा हो। उसके लिए मुझे और आपको दुआ करनी है ताकि जो रहम है वो किसी भी सूरत में बंद ना हो, क्योंकि इब्तिदा से ऐसा नहीं था। इब्तिदा में किसी का रहम जो है किसी बेटी का बीमार नहीं था, लेकिन जब दुश्मन आएगा तो वो क्या करेगा? वो हमला करेगा जब बेटियों के ऊपर, तो वो क्या करेगा? वो उनके रहम को बंद करेगा, वो उनके रहम के अंदर बीमारियों को प्लांट करेगा, उनके लिए ऐसी कॉम्प्लिकेशंस को लेके आएगा जिससे उनकी जिंदगी में मसाइल पैदा हो जाएंगे।
क्यों वो रहम के ऊपर हमला करता है? क्योंकि जो बेटी का रहम है, औरत का जो रहम है, ये जिंदगी का गेटवे है। यहां से जिंदगी डिलीवर होती है जमीन के ऊपर। आप इसको इस तौर से सोचें कि जो औरत का रहम है, ये आज का बाग़-ए-अदन है। आज भी वहां पे क्रिएशन हो रही है, आज भी वहां पे क्रिएशन मौजूद है, आज भी इंसान पैदा हो रहे हैं, आज भी बेटे और बेटियां, आदम और हवा जो है वो तख्लीक किए जा रहे हैं। बाग़-ए-अदन मौजूद है कहां पे? औरत के रहम के अंदर। अगर 139 ज़बूर अगर आप पढ़ें तो 139 ज़बूर की 13 आयत को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि जो औरत का रहम है, वहां पे कौन सी शख्सियत है जो उसको सूरत बख्शती है? खुदा। कौन है जो निगाह लगाए हुए है एक्सरे मशीनों से भी अंदर? खुदा। खुदा उनके कलाम में लिखा है, मैंने अपनी मां के पेट में सूरत पकड़ी, तेरी निगाह मुझ पे थी, तेरे हाथों ने मुझे सूरत बख्शी। सबसे पहले जो है वो बच्चा जब बन रहा है, पैदा हुआ है, तो सबसे पहले बच्चे को डॉक्टर ने नहीं छुआ, नर्स ने नहीं छुआ, किसी दाई ने नहीं छुआ, किसी और ने नहीं छुआ। सबसे पहले बच्चे को खुदा छूता है। इसलिए हर पैदा होने वाला बच्चा, उसके अंदर खुदा को जानने और खुदा को रखने और खुदा से कनेक्ट होने की ख्वाहिश मौजूद होती है। अगर कोई खुदा को ना भी माने तो वो कैविटी, वो खिला कभी पूरा नहीं होता। उसको पूरा करने के लोग बड़े बड़े जतन मतन करते हैं, लेकिन याद रखें कि वो खिला कभी पैदा नहीं होता। इसलिए जो बेटियां हैं, बहनें हैं, कंवारी हैं, उनके रहम के लिए दुआ करें खुदा के, क्योंकि इब्लीस जब हमला करेगा वो उस जगह पे हमला करेगा, क्योंकि वो जिंदगी का गेटवे है। इसलिए मुझे और आपको उनके लिए दुआ करनी है, हमें उनके लिए बरकत चाहनी है, और ये बरकत का बहुत बड़ा हिस्सा है उनकी जिंदगी के अंदर। इसलिए मुझे और आपको, ये बहुत सी और बातें हैं जो मेरे सामने है, 5-10 मिनट के लिए और बस देखेंगे। पहलौठे जो है वो बहुत जरूरी है, सभी जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा छोटे जरूरी नहीं, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। पहलौठे बहुत जरूरी है। अगर आप छोटे हैं तो आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके भी पहलौठे घर में होंगे। तो मसीह जो खुदा का पहलौठा है, मसीह कौन है? वो खुदा का पहलौठा है। मैंने पिछली दफा बताया था वो इकलौता बेटा है, लेकिन जो इकलौता है वो पहलौठा भी है। लेकिन जो पहलौठा है वो इकलौता नहीं है, क्योंकि पहलौठे का मतलब है बाद में और बच्चे भी हैं। इकलौते का मतलब है कि इसके बाद और कोई बच्चा बच्ची नहीं है। तो खुदा का जो इकलौता यानी पहलौठा बच्चा है, यीशु मसीह कलमा होने के सबब से आपने और मैंने जब भी खुदा के पास जाना है, हमने उस पहलौठे के साथ मिलकर जाना है। हमें जो कुछ खुदा से मिलेगा उसके पहलौठे बेटे यीशु मसीह की वजह से। इसलिए खुदा के कलाम में क्या लिखा है? मसीह क्या कहता है? मैं तुम्हारा बड़ा कौन हूं? बड़ा भाई हूं, मैं पहलौठा हूं तुम्हारा, तुम मेरे छोटे बहन भाई हो। खुदा हमारा बाप है। हमने मसीह को खुदा के तौर पे तो अंडरस्टैंड किया है, लेकिन हमने उसे बड़े भाई के तौर पे अंडरस्टैंड नहीं किया, पहलौठे के तौर पे अंडरस्टैंड नहीं किया। और खुदा के पास हमें जो कुछ मिल सकता है उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं जो मसीह के बगैर मिल सकता हो। मसीह ने क्या कहा? मसीह ने कहा
कि कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। कितने जा सकते हैं? कितने मसीह के बगैर बाप के पास जा सकते हैं? कोई नहीं, नॉट अ सिंगल वन, एक भी नहीं जा सकता। मसीह ने कहा राह मैं, जो कुछ मसीह ने कहा है जब हम उसके मुताबिक करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप और मैं दुरुस्त राह के ऊपर है। अगर हमने वो नहीं किया तो हम राह के ऊपर तो हैं, लेकिन ये वो राह है जिसकी इंतहा में मौत की राह है। इसलिए हमें दुरुस्त राह पे चलना है। ये राह जो है ये तंग है, ये राह जो है ये रास्ता सुकड़ा है, इस पे चलने वाले थोड़े हैं, ये पॉपुलर प्लेस नहीं है, बल्कि कलाम में लिखा है जितने रास्तबाजी से दीनदारी से जिंदगी बसर करना चाहेंगे वो सब सताए जाएंगे। They went into persecution, उनको अकेले सफर करना पड़ेगा। उसने कहा राह में, और जब उस राह के एंड पे पहुंचो तो आपको कब किस हक से इस दरवाजे पे आए हो, तो उनको बताओ फरिश्तों को कि मसीह मेरा हक है। मसीह ने कहा राह भी मैं हूं, हक भी मैं हूं, मैं तुम्हें हक दूंगा बादशाही में दाखिल होने का, और हमेशा की जिंदगी भी मसीह है, ताकि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए, कमी ना हो उसके अंदर। हम उस राह पे चल के उस हक में रह के उस जिंदगी तक पहुंच सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सो हमने खुदा के पास जाना है तो उसके पहलौठे हमारे बड़े भाई मसीह के वसीले से, अगर नहीं तो हम वहां नहीं जा सकते। मसीह के बगैर कोई दुआ खुदा तक नहीं पहुंचती, वो उसको कबूल नहीं करता। अगर मसीह के वसीले से है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर वो रद्द कर दी जाती है। आपके ऊपर कितनी भी अनॉइंटिंग हो, आपके ऊपर कितना बड़ा मसा हो, आपकी जो है कैसी भी अप्रोच हो रूहानी, आप किसी भी सूरत पे अपने बड़े भाई खुदावंद यीशु मसीह को इग्नोर नहीं कर सकते, आप उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। आपको जब भी बाप के पास जाना है पहलौठे के पीछे पीछे जाना। आपके जी आप आगे लगे मैं पीछे आता हूं, तो फिर सारे रास्ते खुलते जाते हैं, आप बादशाह के दरबार पे पहुंच जाते हैं और वो पूछता है क्या बात है। उस सूरत में हमारे कैसे भी गुनाह क्यों ना हो, वो किरमजी क्यों ना हो, वो धब्बे बड़े बड़े क्यों ना हो, बाप उन सारे गुनाहों को अपने पहलौठे की वजह से, हमारे बड़े भाई की वजह से माफ कर देता है। और अगर वो ना हो तो छोटी सी चीज भी हम उस तक अप्रोच ही नहीं करते, हमारी दुआएं इधर ही दीवारों दूर साथ टकरा के वापस आ जाती हैं, आसमान तक नहीं पहुंचती। इसलिए मुझे और आपको जब हम मसीह के साथ जाते हैं, जब हम मसीह के साथ चलते हैं तो हमें माफी मिल जाती है, हमें बहाली मिल जाती है। यशुआ की किताब अगर आप पढ़े 6 बाब की 26वीं आयत में लिखा है कि यरू को उसने फतह किया। यशुआ 6 बाब और उसकी 26 आयत, यरू को उसने फतह किया और उसके बाद उसने उस पे लानत की, और पैटर्न उसने क्या रखा कि अगर किसी ने जमीन के इस टुकड़े या इस शहर को बहाल करना है तो उसको लानत उठानी पड़ेगी, और उसकी प्राइस क्या है कि उसको बहाल करने की बुनियाद रखेगा तो उसका बड़ा बेटा मारा जाएगा, और उसके फाटक लगाएगा तो उसका छोटा बेटा मारा जाएगा। फाटक लगाने का मतलब है चीजों को सिक्योर करना, महफूज कर देना।
और जब खुदा ने इस पूरी जमीन को, जो आदम की वजह से लानत के नीचे चली गई है, जब उसने इसको बहाल करना है तो पैटर्न सेम है। जब खुदा ने इसको बहाल करने की बुनियाद रखी तो उसका बड़ा बेटा, उसका पहलौठा बेटा यीशु अल मसीह कुर्बान हो गया, वो मारा गया। और जब उसने अब इसको फाटक लगाने हैं, हमें सिक्योर करना है, तो उसके छोटे बेटे रसूल और नबी और पैगंबर जो मसीह के साथ चलते थे, उनकी कुर्बानी दी गई ताकि मैं और आप सिक्योर कर दिया जाए। आज भी वो फाटक लगाए जा रहे हैं। इसलिए खुदा ने क्या कहा था? कब तक वफादार रहना है? जान देने तक। उसको आपकी जान की जरूरत पड़ सकती है। हम तो हल्की फुल्की डिस्कंफर्ट बर्दाश्त नहीं करते, तो जान क्या देनी है हमने? खुदा के लिए खुदा के साथ चलना ये आसान काम नहीं है। हम अपने लिए खुदा के साथ चलते हैं। खुदा के लिए खुदा में खुदा को तलाश करना ये जरूरी है। हम खुदा में अपने मसलों का हल तलाश करते हैं, खुदा तलाश नहीं करते। तो अगर खुदा ने बुनियाद रखनी है इस जमीन को, तो उसकी लानत उठानी पड़ेगी। पैटर्न वही है। लानत उठानी है तो कीमत अदा करनी पड़ेगी। कीमत है, बुनियाद रखेगा तो पहलौठा मरेगा, फाटक लगाएगा तो छोटे मरेंगे। और छोटों को उसने कहा कि लोग तुम पे जुल्म करेंगे, तुम्हारी बातें नाहक कहेंगे और तुम्हें कत्ल के लिए हवाले कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब फाटक लगाए जाएंगे। क्या आप तैयार हैं कि फाटक लगाने में आप हिस्सेदार ठहरे? अगर तैयार हैं तो खुदा भी आपको बरकत देने के लिए तैयार है। अगर आपकी निगाह जमीन के ऊपर किसी चीज पे है तो फिर आप कुछ भी नहीं पा सकते, ना जमीन पे ना आसमान पे। लेकिन अगर हमारी निगाह आसमान के ऊपर पाने के लिए है तो अजीजों सारी चीजें हमारे लिए हैं। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को उसके पाक हजूर में झुकाइए।